گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے فکر مقاومت کی ترویج کے لیے میں دعوت خطاب دینا چاہتی ہوں نامور اسلامی اسکالر ڈاکٹر سکینہ مہدوی صاحبہ کو کہ جو تعلیم یافتہ ہیں علوم اسلامی تہران یونیورسٹی اور حوزہ علمیہ قم سے، پی ایچ ڈی ہیں ادیان الہی اور اسپیشلائز کرتی ہیں اسلامی تاریخ، فلسفہ اور قرآن، اور موجد ہیں قرآن و اہل بیت اکیڈمی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ آپ تمام مہمانان عزیز، خصوصاً جامع ام الکتاب کے معزز، قابل قدر، قابل احترام مسئولین محترم اور سر فہرست استاد محترم آغا سید جواد نقوی حفظہ اللہ، اور آپ تمام مہمانان عزیز جو یہاں تشریف فرما ہیں، جو مقررین محترم، جو اپنے قیمتی بیانات، قیمتی الفاظ، دلوں کو ہلا دینے والے جملے کے ساتھ یہاں تشریف فرما ہیں، آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کے آنے کا اور آپ کے اس پروگرام کو منعقد کرنے کا۔ یہاں جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں، ہم مہمان نہیں، ہم اس پروگرام کا ایک جز ہیں۔ ہم سب ملے ہیں تو ایک گلدستہ بنتا ہے، مہمان بن کر نہیں آئے، پروگرام کا حصہ بن کر آئے۔ کیوں؟ کیونکہ آج جس مقصد کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے، ایک ایسا مقصد ہے، ایسا مقصد شہید رہبر معظم کے آج چہلم تھے، چہلم کے حوالے سے ہم اکٹھے ہوئے، اور ایک ایسی عظیم ہستی کے لیے ہم اکٹھے ہوئے جن کی شہادت نے پورے دنیا کے زندہ ضمیروں کو رلا دیا۔ شہادت کی خبر سنتے ہی شاید ہم میں سے کسی نے ان کو دیکھا نہیں، شاید ہم میں سے کسی نے ان کو قریب سے سنا نہیں، لیکن جو ہی خبر شہادت ملی، ہم سب کے گھروں میں ایسے صفِ ماتم بچھ گیا، ایسا لگا جیسا کوئی ہمارا عزیز ہے جو ہم سے بچھڑ گیا ہے۔ اس دن دنیا کے زندہ ضمیروں کو بلکتے ہوئے روتے ہوئے دیکھا، مردوں کو سر پیٹ کے روتے ہوئے دیکھا، خواتین کو سینہ کوبی کرتے ہوئے روتے ہوئے دیکھا، معصوم بچوں کو سروں پہ مار کر چھوٹے چھوٹے بچے یہ جملہ کہتے ہوئے دیکھا گیا، جو بچے کہتے تھے یہ کبھی شہید نہیں ہو سکتے، یہ کبھی ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ اس بزرگوار کی شہادت کے چہلم میں اکٹھے ہوئے، ہم نے انبیاء کو نہیں دیکھا، ہم نے معصومین کو نہیں دیکھا، ہم نے انبیاء کی شہادتوں کے بعد جس درد کا احساس ہوتا ہے وہ ہم نے کبھی محسوس نہیں کیا۔ ہم نے ضرور مجلسیں کی، ہم نے ضرور دن منائے، لیکن وہ جو کرب کا احساس ہمیں شہید رہبر کی شہادت کے بعد محسوس ہوا، تب ہمیں اندازہ ہوا اگر ایک اہل بیت کے در کے غلام کی شہادت دلوں کو یوں موڑ دیتی ہے تو اللہ جانے معصوم کی شہادت معاشرے میں کتنا اثر رکھتی ہے۔ آج ہم اس شہید بزرگوار کے لیے اکٹھے ہوئے، اور موضوع عنوان بھی دیا گیا، خواتین کا کردار کیا ہے۔ بہت ساری جنگیں دیکھی ہوں گی ہم نے، بہت ساری جنگ کے میدان میں مردوں کے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھا ہے، جنگ کے میدان میں بچوں کے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن یہ وہ جنگ ہے جس کے میدان میں خواتین کے جنازے بھی اٹھتے ہوئے دیکھا ہے۔
जैसे मर्द शहीद हो रहे इस मैदान में, उसी तरह हमने ख़वातीन के जनाज़ों को भी, शहीद ख़वातीन के जनाज़ों को मर्दों के कंधों पे उठते हुए देखा। अजीब जंग है जिसमें खातून भी है, मर्द भी है, बच्चे भी हैं, स्कूल की मासूम बच्चियां भी हैं। और उन्वान क्या था? ख़वातीन का किरदार। अजीज़ान मन, मुझसे पहले जितने मुक़र्रीन तशरीफ़ लाए उनके तमाम अल्फाज और जज्बात के मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। आपने हमारे दिलों को हिला दिया। ये दौर बड़ा कठिन दौर है, बड़ा मुश्किल दौर है, बहुत मुश्किल दौर है। इस दौर में मीडिया का प्रोपेगेंडा सर फहरिस्त है। इस दौर में सवालों के बौछार सर फहरिस्त है। इस दौर में जितनी मुज़ाहिमत अपनी बुलंदियों पे जा रही है और जितने जुल्म और बर्बरियत पस्ती की तरफ जा रही है, वहीं पर प्रोपेगेंडा भी अपने अरूज पे है। खबरों को किस तरह मोड़ के लोगों के जहनों तक मुंतकिल किया जाता है। और बहुत सारे लोग आज के दौर में भी सवालिया निशान लेकर खड़े हैं। हमने क्या करना है, हम कहाँ खड़े हैं, हमारे फ़राइज़ क्या हैं, इस जंग का नतीजा क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, बहुत सारे इस तरह के सवालात। हमारी ज़िम्मेदारी क्या है बहैसियत खातून? हमारी ज़िम्मेदारी क्या है कि हमसे हमारे बच्चे भी पूछेंगे, हमारे रिश्तेदार भी पूछेंगे, हमारे मिलने वाले भी पूछेंगे, इन हालात में हमारी ज़िम्मेदारी क्या है। तो यकीनन जो अवेयरनेस एक औरत दे सकती है ना, सब्र और हौसले के साथ, वो अवेयरनेस कोई और नहीं दे सकता। और जिस मुआशरे की औरतें बेदार हों, औरतें बामारिफत हों, औरतें ज़माने की नज़ाकत को समझ सकती हों, वो मुआशरा कभी भी हार नहीं सकता। वो मुआशरा कभी भी जुल्म के सामने झुकता नहीं है। वो मुआशरा सर देगा लेकिन बैअत नहीं। दीन के अवेयरनेस ज़रूरी है, शऊर ज़रूरी है, आज के हालात पे गिरफ्त ज़रूरी है। चंद जुमले कहूँगी, चंद जुमले। कभी आपने सोचा इस रहबर मुअज़्ज़म के लहू ने 40 सालों से जो फ़िरक़ा वारियत के बीज बोई गई थी पूरे मशरिक़ वस्ता में, इस फ़िरक़ा वारियत के बीज को, इसके जड़ों को उखाड़ के फेंक दिया। क्या आपने देखा? शहीद के लहू की बरकत से, इस लहू की अज़मत ने दुनिया में सिर्फ 2 गिरोह, सिर्फ 2, एक मुज़ाहिमत का गिरोह, एक सहयून इसराइल का गिरोह, तीसरा गिरोह, जितने गिरोह थे, जितने नाम नहाद थे, सब दफन हो गए। आज सिर्फ और सिर्फ 2 ही नज़रिया बचा। इस खून के बरकत की वजह से एक नज़रिया मुज़ाहिमत का है और एक नज़रिया इसराइल ज़ाइन सहयून का है। मिस्री तजिया निगार ने कहा, आज ईरान के लीडर की शहादत ने इंसानों को एक ऐसे कटोरे में लाकर खड़ा कर दिया, या तुम मुज़ाहिमत का साथ दो, अगर तुम मुज़ाहिमत का साथ नहीं दोगे तो तुम ऑटोमेटिक इसराइल के साथ हो। मुज़ाहिमत वाला हक, मुज़ाहिमत वाला हक किसे कहते हैं? जो बातिल के सामने झुके नहीं, साजिश ना करे, मसलहत नहीं, दुश्मन के सामने डट के मजलूम का हक लेना, दुश्मन को कटोरे में खड़ा करके उसके चेहरे पे जितनी मुनाफिकत के पर्दे हैं उसे उखाड़ देना, इसे कहते हैं मुज़ाहिमत। किसके सामने? सहयून, इसराइल, ज़ायनिस्ट, शैतान परस्तों के सामने। आज इस लहू ने मशरिक़े वुस्ता की तारीख को बदल दिया। आज इस लहू की ताकत ने, कल तक दुनिया में सुपर पावर अमेरिका को समझा जाता था, इस लहू की बरकत ने ऐसा टर्न दे दिया कि आज पूरी दुनिया कहती है अगर कोई सुपर पावर है तो वो इस्लाम है। कौन सा इस्लाम? जिस इस्लाम के पैरोकार अली मुर्तज़ा के मानने वाले, करबला के रास्ते पे चलने वाले। आज ये हम नहीं कहते, दुनिया ये कह रही है। ये हमारे जुमले नहीं हैं, ये दुनिया के जुमले हैं। तवज्जो फरमाइएगा, 2-3 जुमले। अब तक
شہید کی شہادت سے قبل تک دنیا، یورپ اسلام جانتی تھی، اسلام کے بارے میں انہیں معلوم تھا، مسلمان کو بھی جانتے تھے، لیکن مغربی دنیا کے لوگ، توجہ فرمائیے گا، مغربی دنیا کے لوگ جب سنتے تھے مسلمان تو وہ گھبرا جاتے تھے. کیوں؟ انہوں نے اب تک دو طرح کے مسلمان دیکھے. اب تک مغرب زمین کے لوگوں نے دو طرح کے مسلمان دیکھے. ایک وہ مسلمان جو داعش نما گردنیں کاٹتے ہیں، اور ایک وہ مسلمان جو امریکہ کے جوتے چاٹتے ہیں. عربوں کو دیکھا یورپ نے داعش کو دیکھا، یورپ نے عربوں کو دیکھا جو پیسہ لٹاتے ہیں، بیٹیاں نچواتے ہیں. یورپ نے کب وہ اسلام دیکھا تھا جو اسلام آج ظاہر ہوا ہے. آج یورپ نے دیکھا اصل اسلام وہ ہے جو مظلوم کا دفاع کرتا ہے، جب بولتا ہے میں ماروں گا تو بتا کے مارتا ہے. اور وہ اسلام جو جب بدلہ لیتا ہے، تم نے ہمارے اسکول مارے، ہم نے اسکول نہیں مارا. تم نے ہمارے ہاسپٹل مارے، ہم نے ہاسپٹل نہیں مارا. ہم نے اگر بدلہ بھی لیا، انسانوں سے، بے گناہوں سے بدلہ نہیں لیا، سرغنوں سے بدلہ لیا. کیونکہ قرآن کا حکم ہے جو عہد کر کے عہد توڑے، ان کے سرغنوں کو ایسی سزا دو کہ دوبارہ عہد توڑنے اور اسلام کا مذاق اڑانے کی جرت نہ کرے. آج دنیا نے اس اسلام کو دیکھا. آج اس شہید مظلوم کی بابرکت پاکیزہ لہو نے بتا دیا. اب تک مغرب کی دنیا جن مسلمانوں کو جانتے تھے، یا وہ گردنیں کاٹنے والے سفاک تھے، یا وہ ڈرپوک تھے عرب ممالک کے حکمرانوں کی طرح. پہلی مرتبہ دنیا نے دیکھا علی والے کیسے ہوتے ہیں، جیدار کیسے ہوتے ہیں، اگر مارنے کا عزم کرے تو مارنے والے کیسے ہوتے ہیں. دشمن کے گھر میں جا کر ان کے تمام راڈار کو ختم کر کے دشمن کے نیندوں کو اڑانے والے کسے کہتے ہیں؟ کون ہے وہ؟ کون سا اسلام ہے جو نہ بکتا ہے، نہ جھکتا ہے، نہ ڈرتا ہے، نہ میدان چھوڑ کے بھاگتا ہے؟ تو پوری دنیا کو پتا چلا کربلا تھی نہیں، کربلا ہے. آج مسلمانوں کو بھی اندازہ ہوا کہ اصل اسلام ہی یہی ہے. جب اسلام کے نام پر جینے والے مظلوم پہ حملہ ہو رہا تھا، دنیا تماشائی رہی. آواز اٹھانے والا ایک ہی اسلام تھا، محمدی اسلام. محمدی اسلام، سفیانی اسلام اور ہے، محمدی اسلام اور ہے. آج پوری دنیا کو محمدی اسلام کے چھتری کے سائے میں اکٹھا کرنے والے کو سید علی خامنائی کہتے. ان کی لہو کی برکتیں دیکھیں، برکت عجیب ہے، برکت عجیب ہے. آج جو بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو، مسلمان ہو یا ہندو، عیسائی ہو یا نان مسلم، لعنتیں بیچ کر کہتا ہے کہ یہ ضمیر فروش ہے، یہ مظلوم کے خون کا سودا کرنے والے ہیں. واہ اللہ واہ. ہم اگر چاہتے بھی کہ امریکہ کے 80 لاکھ لوگوں کو سڑکوں پہ لا کر کہیں تمہاری حکومت ظالم ہے، اگر ہم چاہتے بھی ہم کبھی یہ کام نہیں کر سکتے تھے. سارے مسلمان اکٹھے ہو کے فنڈنگ بھی کرتے، 80 لاکھ امریکن کو ہم سڑکوں پہ لا نہیں سکتے تھے. لیکن اس شہید کے لہو کی برکت ایسی ہے، امریکہ کے 80 لاکھ لوگ سڑکوں پہ آ کر کہنے لگے ان کی حکومت ظالم حکومت ہے. واہ اللہ واہ. مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. ہم نے ان آیتوں کی تجلی دیکھی. آغا سید اتنے کمال میں تھے، کیا کیا اپنی زندگی میں، کیا کیا؟ 2 واقعہ سناؤں. گزشتہ تقریباً ان کی فیملی کے ڈاکٹر بتاتے ہیں گزشتہ 1 سال سے آغا کی عمر کتنی تھی؟ 86 سال، 86. بہت بزرگ ہوتے ہیں نا اس عمر میں. ڈاکٹروں نے تجویز کی ان کو تازہ پھل کھانا چاہیے کیونکہ عمر زیادہ ہے. پھل کا جوس. اگلی دفعہ جب ڈاکٹر آئے، گھر والوں سے پوچھا کہ آپ نے ان کو تازہ پھل دیا ہے؟
जवाब क्या आया, घर वालों ने कहा नहीं वो नहीं खाते। कहा क्यों नहीं खाते? कहा उन्होंने सबसे पहले हमसे पूछा सबसे सस्ता फल कौन सा है। हमने कहा फलां फल सस्ता है। कहा ये जो सबसे सस्ता फल मेरे माशरे का गरीब लोग खा सकते हैं? कहा नहीं आगा। कहा फिर मैं भी नहीं खाऊंगा। 4 बेटे हैं, चारों बेटों का ज़ाती घर नहीं है, खुद आगा का घर ज़ाती नहीं है। शहादत से 1 हफ्ता पहले आगा लारी जानी और उनकी हिफाजती टीम आगा के पास आए। आगा थ्रेट्स हैं, आगा अब इन दुश्मनों ने आपको निशाना बनाया है, आगा आपके लिए बंकर का इंतज़ाम है, अगर जहमत ना हो कुछ अरसे के लिए बंकर में चले जाएं। आगा लारी जानी कहते हैं ये सुन के वो मुस्कराए, अपनी जगह से उठे, चंद कदम चले। कहा बंकर मेरे लिए? कहा जी। फरमाया क्या 9 करोड़ आवाम के लिए भी बंकर हैं? कहा नहीं आगा उनके लिए तो नहीं है। क्या उनके जान खतरे में नहीं है? कहा है तो सही। कहा अगर 9 करोड़ के लिए बंकर नहीं है मैं भी बंकर में नहीं जाऊंगा। हिफाजती टीम ने कहा आगा आपकी ज़रूरत है, हमें आपकी ज़रूरत है। आगा ने कहा ये दौर करबला का है, हम तन्हा ज़रूर हैं, मज़लूम ज़रूर हैं, गमज़दा ज़रूर हैं, कमज़ोर नहीं हैं। मुझ जैसा कभी भी इन मलऊनों के सामने नहीं झुकेगा। कहते हमने आगा को कायल करना था, राज़ी करना था बंकर पे जाएं। हमने कहा आगा 12वें इमाम भी तो गैबत पे गए, कुछ अरसे के लिए नज़रों से ओझल हो जाएं, कुछ अरसे के लिए, फिर वापस आ जाएंगे। पलट के कहा 12वें इमाम के पास लश्कर नहीं था, 12वें इमाम के पास फदाई नहीं थे, मेरे साथ लश्कर है। मैं कैसे खुद बंकर में चला जाऊं और अपने सिपाहियों से कहूं सफ़े अव्वल में खड़े होकर जंग लड़ो? आगा लारी जानी कहते हैं हमें लाजवाब कर दिया। हमने कहा आगा अगर ऐसी बात है तो अपनी फैमिली को बंकर में भेज दें, उनकी हिफाजत हो जाए। आगा ने खुद डिसीजन नहीं लिया। आगा लारी जानी कहते हैं वो रात आशूरा वाली रात थी हमारे लिए। आगा ने कहा रुको मैं जाके पहले फैमिली से पूछता हूँ वो बंकर पे जाने को तैयार है या नहीं। आए अंदरून अपने घर, बीवी बच्चे, वो छोटी सी नवासी 14 महीने की, सबको इकट्ठा किया। इकट्ठा करके कहा हालात टफ हैं, मैं टारगेट में हूँ, आप सबके लिए बंकर का इंतज़ाम है, आप लोग वहाँ चले जाएं। फैमिली ने कहा आप? कहा मैं नहीं जाऊँगा। फैमिली ने कहा तो आप कैसे कह सकते हैं हम बंकर में चले जाएं, हम भी वही करबला वाले, कुर्बानी देंगे, बंकर में नहीं जाएंगे। आगा सैयद अली और उनके खानवादा ने इस शहादत को अल्लाह से ख़रीदा है। ये हादसाती शहादत नहीं है, अचानक की शहादत नहीं है, मालूम नहीं था बॉम्ब गिरा नहीं, ये इख्तियारी शहादत थी। इख्तियारी शहादत किसे कहते हैं? इख्तियारी शहादत समझने के लिए एक मर्तबा करबला पढ़ लेना। इख्तियारी शहादत यानी अब्बास की शहादत, इख्तियारी शहादत यानी अली अकबर 18 साल के शबीह पैगंबर को अपने हाथों से तैयार करके मैदान की तरफ भेजना। इख्तियारी शहादत यानी अपने 6 महीने के मासूम को, प्यास से अली असगर को हाथों में लेकर दुश्मन के सामने खड़े होकर एक कतरा पानी का सवाल करना, ये इख्तियारी शहादत है। इख्तियारी शहादत यानी अल्लाह के साथ मामला करना। ऐसा मामला कर गए, ऐसा कि अल्लाह ने उम्मत को मुत्तहिद कर दिया। ऐसा मामला करके गए, ऐसा कि दुश्मन रुसवा हो गया। कल
हम अपने मुल्क अजीज़ पाकिस्तान का शुक्रगुजार तो ज़रूर हैं हम कि उन्होंने पूरी कोशिश की इस जंगबंदी के लिए, मुज़ाकरे के लिए। कल रात 12 बजे तक, सुबह 5 बजे तक दिल की धड़कनें तेज़ थी। क्या होगा मुज़ाकरे में, क्या होगा, क्या डील होगी, कौन सी बात सामने आएगी। जब मुज़ाकरे की बात चली, जंगबंदी हुई, आपने तेहरान के, ईरान के सड़कों को मीडिया में देखा होगा। लोग डबल सड़कों पे आए, हाथों में बैनर लेकर आए। बैनर क्या लेकर आए? पूरी दुनिया दुआ कर रही थी सुलह हो जाए, मुज़ाकरा कामयाब हो। लेकिन ईरानी अवाम जो बैनर लेकर आए थे, एक जुमला लिखा था, दुनिया वाले जंग से डरते हैं और हम मुज़ाकरा करने से डरते हैं। क्यों मुज़ाकरा करने से डरते हैं? क्योंकि हमें मालूम है हमारे सामने जो अमेरिका शैतान बुजुर्ग है वो कभी अपने वादा पूरा। कल आपने देखा मुज़ाकरे की टीम है ना, अमेरिकन टीम भी आई, एम्बुलेंस भी आई, गाड़ियां भी आई। ईरानी टीम अब अपने साथ किनको लेकर आए? हम अपने साथ 168 बेगुनाह शहीद बच्चियों का बैग लेकर आए, उनके ज़ख्मी जूते लेकर आए। क्या अनोखा काम कर दिया। और इस टीम का नाम ही मीनाप 168 रखा गया। आज सुबह फाइनल मुज़ाकरा नाकाम। आज सुबह की खबरें देखिए, नाकाम। क्यों? ईरानी वफद कहते हैं जो कुछ अमेरिका ने जंग में हासिल नहीं कर सका वो मुज़ाकरे में हमसे लेना चाहता है। हम न वतन फरोश है, न खून फरोश है, न इस्लाम फरोश है। जो हमारे 10 शराइत हैं, अगर इस पे अमेरिका पूरा उतरता है, मुज़ाकरा मंजूर है, वरना अबनाए हुर्मुज़ बंद रहेगा। और जब तक इसराइल को सफ़े हस्ती से न मिटा दे, हमने अपने रहबर का इंतकाम नहीं लिया। रहबर का इंतकाम 9 करोड़ ईरान की आवाम, 21 करोड़ पाकिस्तान की आवाम और दुनिया भर के जिंदा ज़मीर, एक ही मुतालबा है, एक ही इंतकाम का जुमला है, इसराइल को सफ़े हस्ती से मिटा दो। और इंशाअल्लाह इसराइल को मिटता हुआ हम देखेंगे। हमारे रहबर ने बशारत दी है, तुम बैतुल मुक़द्दस में नमाज पढ़ोगे, इंशाअल्लाह हम वहाँ नमाज भी पढ़ेंगे। और ये उम्मत का इत्तेहाद दुश्मन को, ये इत्तेहाद का समंदर, ये इत्तेहाद का लावा दुश्मन को बहा देगा। आज भी दुश्मन जलील है, कल भी ये जलील था और ये हमेशा जलील रहेगा। ये मैं नहीं कह रही, ये कुरान की आयतें हैं। अल्लाह कहता है इन पे लानत है, इन पे जिल्लत है। और ज़माने के दुश्मनों को बेनकाब करके कटेरे में लाके जलील और रुस्वा करने वाले हमारे रहबर मुअज़्ज़म के पाक लहू है। अल्लाह हम सबको इस दौर में ईमान सलामत रखने की, ईमान सलामत। मैं एक आयतुल्लाह को कल सुन रही थी, बड़ा अजीब जुमला कहा, मैं बड़ा घबराई। कहते हैं शहादत के बाद हर इंसान को अपना आईना नज़र आया, सब हिले, सबको लगा मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। कि शहादत के बाद जिसके अंदर जो भी तब्दीली आई, समझ जाओ तुम मोमिन हो, समझ जाओ तुम्हें अल्लाह ने ज़हूर के लिए चुना है। अल्लाह करे इस शहादत के नतीजे में जो अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली सबके अंदर आई है, अल्लाह उस तब्दीली के सदक़े हम सबको इमाम वक्त अलैहिस्सलाम के अलम बरदारों में शामिल करके, इमाम के ज़हूर देखने वालों में शामिल करके, एक एक मज़लूम पाराचनार, ईरान, लेबनान, इराक के मज़लूमों के लहू के बदला लेकर सरखरू होने वाले मोमिनीन में अल्लाह हम सबका शुमार फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।